बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ उमर साजिद स्पीकिंग। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जस्ट टाइप यस और दैट्स इट। Okay then. Acha, this is slide number 1. I hope everybody is looking at it. EE163 Computers and Programming Live Lecture 1. This is today, 9th June, Tuesday. ये class में what we are going to do is we are going to discuss a few things. सबसे पहले तो क्या कहते हैं, अनिल का सवाल था कि why we are or will be electrical engineers, तो computers and programming क्यों पढ़ें? Why should we learn computers and programming? Reason उसका ये है कि हमारे पास we have computers pretty much everywhere and they are running the show actually. तो उसमें we need to program lots of things, even though if you are working in some making some factories or designing some factories or you're doing some industrial automation, उसमें हर जगह पे you're going to use computers and you need to program those computers. अब उसमें depends on you ke where you want to go. I mean, it's a useful skill to have. Whatever hardware you're going to make is going to have some computing in it, so you need to program that. हम लोगों का यहाँ पे target ये है C++ में कि whenever you are doing some microcontroller or microprocessor programming, microcontroller to be precise, whenever you are doing some embedded systems programming, just say for example you're making some kind of a device to do something. Let's say you are making some kind of a product, let's say a microwave oven. A microwave oven में you have एक programmed computer होता है जिसके अंदर you have to write a program so that for different settings जो कि user select करता है उसके मुताबिक you have to do the work, or that machine has to do some work. एक example ये हो गई. Similarly, if you are doing some industrial automation stuff, let's say you are going for robotics and automation, वहाँ पे भी there are lots of computers, lots of sensors. You are taking in data from those sensors, you're taking in data from lots of devices, and you need to program के उस data की बुनियाद पे you need to take some decisions over there. तो इसमें let's take an example of electrical engineering. Electrical engineering में we have some relays, जैसे हमारे पास programmable relays होते हैं. वो हमारे पास fault की prevention के लिए, अगर कहीं fault आ जाती है तो वो trip कर जाते हैं and they have to be programmed correctly. Some are computer controlled relays or also known as numeric relays, और वहाँ पर you have to program them correctly कि they have to pick up the right kind of fault. बाद औक़ात होता है कि let's say एक simple example है कि आप कोई हैवी लोड ऑन करते हैं, तो हैवी लोड ऑन करने की वजह से एक सर्च करंट आता है. सर्च करंट जो है वो फॉल्ट करंट नहीं होता. सर्च करंट इज एक्चुअली 3 टाइम्स एज मच एज द नॉर्मल रनिंग करंट, बट यू नीड टू प्रोग्राम इट सच दैट कि इट हैज़ टू पिक अप द फॉल्ट करंट बट नॉट द सर्च करंट. वो फिर सर्च करंट पे अगर ट्रिप होने लगेगा तो मशीन कभी भी स्टार्ट नहीं होगी. तो ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है. उसके अलावा लॉट्स ऑफ फील्ड्स आर प्रॉपिंग अप. जैसे आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे अब इंटरनेट के ऊपर ही तकरीबन अच्छी खासी इकोनॉमी हमारी मूव कर गई है. तो नीड टू हैव दीज स्किल्स. आई एम नॉट सेइंग कि यू डेवलप ऑल ऑफ दीज स्किल्स. डिपेंड्स के जिन फील्ड्स आपको इंटरेस्टिंग लगें उसकी आप जो है वहाँ पर उसकी एक्सपर्टीज आप डेवलप कर सकते हैं. तो उसके लिए एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने से ये होगा कि कॉन्सेप्ट्स यही होंगे कि जहाँ पे हम ये सिंपल जो अभी जो हमें सिंपल प्रोग्राम मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा राइट नाउ, और उसको वही प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लग सकते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट दोस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जो आजकल काफ़ी हॉट चल रही हैं. बट फर्स्ट द फील्ड्स इन विच यू कैन वर्क इफ यू लर्न दीज कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग एंड यू डेवलप एक्सपर्टीज इन इट. नंबर 1 इज डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स. आपके पास जितनी भी फेसबुक पे या आपके यूट्यूब पे जितनी भी सजेशंस आती हैं, दे एक्चुअली नो मोर अबाउट यू than you know about yourself, because they actually understand your browsing behavior, और behind the scene उनके पीछे एक deep learning algorithms बहुत सारे चल रहे होते हैं and they are trying to predict. या जैसे अगर आप Netflix वगैरह पर हैं तो Netflix पे आपकी जो suggestions आपके सामने आती हैं, that is actually dependent on your previous behavior. So the data science या data analytics हो गई, और whatever you are looking at the internet या कौन से ads आपको नजर आ रहे हैं और आप कौन सी products में ज़्यादा interested होंगे, वो सारी की सारी जो है हमारे पास ये deep learning और data science and analytics के जरिए आती हैं. Enterprise applications what we mean by that is कि companies के अंदर जो enterprise resource planning के जो softwares होते हैं वो आप develop कर सकते हैं. Web development means all the apps you see on your Android or iOS phone, और उसके अलावा बैक एंड डेवलपमेंट, सर्वर साइड डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वंस अगेन ये डिफरेंट नाम लिखे हुए, और ब्राउजर गेम डेवलपमेंट. गेम डेवलपमेंट एक अलग से होती है जिसमें आप बहुत बड़े बड़े गेम्स होते हैं, वो भी C++ या उसके अलावा उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनते हैं. और
इसके बाद एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हमने डिस्कस कर लिया था, और इसके अलावा गेम डेवलपमेंट यहाँ पे आ गई। आई एम टॉकिंग अबाउट नेटिव गेम डेवलपमेंट ओवर हियर। और ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और हमारे पास जो फाइनेंशियल साइड की जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमारे पास जो स्टॉक ट्रेडिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो अब एसेंशियली सारे के सारे कंप्यूटर्स करते हैं। ह्यूमंस आर एक्चुअली वेरी स्लो इन इट। बाय द टाइम यू टेक अ डिसीजन, कंप्यूटर उससे पहले ही कई हज़ार डिसीजन ले चुका होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग में जा रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रेडिंग में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड टू डेवलप द एप्स फॉर दैट। Software for Windows platforms, just as we are using this Chrome browser right now, Chrome browser जो है वो C++ में बना है। उसके अलावा जो आपका Microsoft Word है, PowerPoint है, और जितने भी आपके मीडिया प्लेयर्स हैं, ये सारी विंडोज एप्स जो हैं ये इसके लिए डेवलप हुई हैं। इफ एनीबॉडी इज यूजिंग लिनक्स और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज iOS, तो उसकी फिर अपने उन प्लेटफॉर्म्स के लिए फिर उनकी अपनी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए उनकी अपनी लैंग्वेजेस होंगी। अच्छा, अब इसमें what we are really concerned with is this, जो कि मैंने 3 येलो कलर्स में हमारे पास लिखा हुआ है। सॉरी, ये भी मुझे करना चाहिए था बट ये मैं नहीं करा। कि सबसे पहली चीज़ जो हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा इसमें, ऐसी आपकी स्किल बना दी जाए, बेसिक स्किल, सो दैट इफ़ यू वांट टू लर्न इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोग्रामिंग एंड रियल टाइम सिस्टम प्रोग्रामिंग, और यू वांट टू डू सम एम्बेडेड सिस्टम्स और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, अगर आप उसकी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो बेसिक स्किल सेट है वो आपका यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। यस, एब्सोल्युटली राइट। अहमद इमाम ने कहा एटीएम मशीन्स आर आल्सो डेवलप्ड। ऑब्वियसली उसके पीछे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, उसके ऊपर एक ऐप होती है। वो ऐप जो है आपके कीपैड से या आपके फिंगरप्रिंट से जो है वो इनपुट लेके डिपेंड, और वो पीछे सर्वर से कोऑर्डिनेट करके फिर वो बताती है कि भाई आपके अकाउंट में जो है वो क्या क्या है, और जो भी आपको नेक्स्ट ऑपरेशंस करने वो आप कैसे उसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो है, आई मीन दीज आर द फील्ड्स इन विच यू कैन गो। और एसेंशियली अब जैसे इस तरह के हालात चल रहे हैं, तो इसमें इट इज़ रियली लाइकली कि इंटरनेट और इंटरनेट बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, या ऑनलाइन हमारे पास जो इंटरनेट ट्रेडिंग वगैरह है, वो दैट विल बी प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन आवर लाइफ एज टाइम गोज ऑन। और एल्गोरिथम्स जो हम पीछे डिज़ाइन करते हैं, दे एक्चुअली कंट्रोल आवर बिहेवियर, एंड दे दोज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लर्न फ्रॉम आवर बिहेवियर, एंड दे एक्चुअली keep getting better and better day after day, क्योंकि हम constantly उसको data feed कर रहे होते हैं। Even just your browsing habits जो हैं, the way you move your mouse or the way you type on the keyboard is all logged on the computer, and computer या जो artificial intelligence की जो apps होती हैं वो आपके behavior को learn कर रही होती हैं। You might have played some games इन योर स्कूल और कॉलेज, जिसमें आप ये देखते होगे कि जो आपकी जो जिसके खिलाफ आप गेम खेल रहे हो, इफ इट्स अ कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर एक्चुअली गेट्स बेटर एज यू मूव अलोंग इन योर गेम प्लेइंग, क्योंकि वो आपका बिहेवियर लर्न कर रहा होता है। बिहाइंड द सीन एवरीथिंग इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग बिहाइंड द सीन्स गोइंग ऑन ओवर देयर। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैनी ऑफ देम, मैंने यहाँ पे 5 6 7 8 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। सी प्रोग्रामिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और सी प्लस प्लस जो है वो इसी का एक सुपर सेट है। आई मीन सी लैंग्वेज इज एक्चुअली नाउ अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। सी जो है इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आ गई है। और जावा जो है, इफ यू नो सी प्लस प्लस, तो जावा सीखना आपको इतना मसला नहीं होगा। एंड सेम विद सी शार्प, एंड प्रीटी मच सेम इज स्विफ्ट लैंग्वेज फॉर iOS डेवलपमेंट। सी प्लस प्लस अगर आप लर्न कर लेते हो, तो सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में आपको बाकी तमाम लैंग्वेजेस लर्न करने में यू शुड नॉट टेक मोर देन अ फ्यू वीक्स इफ यू नो सी प्लस प्लस, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आ गई है, पॉइंटर बेस्ड एक्सेस भी आ गई है। सॉरी, ये वर्ड्स आपको भी थोड़े से एलियन लग रहे होंगे, ये हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट दिस वर्ड्स मीन। As far as interpreted languages are concerned, तो we have a Python, ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज हो रही है for data science and web development, even for embedded system programming as well. We have JavaScript and we have PHP as well. So if you want to learn this Python or JavaScript or PHP, तो I would suggest कि go for one language such as C or C++, learn the basics here, जो कितने भी basics आप यहाँ पे perfectly master कर सकते हैं। यही सारे basics जो हैं बाकी तमाम languages में भी लगते हैं। So C++ इसलिए select की गई so that you can learn other languages if needs arises, और Python और C++ आपस में भी coordinate कर सकते हैं। Python कोड जो है वो कुछ काम अपना C++ से भी ये ले सकता है। अच्छा, यहाँ पे अहमद आसिफ ने कहा why do we use code blocks in this course even though we are well aware of the fact that code block is a really difficult software. Difficult, it depends really कि हाँ, you can use dev C++, no problem, no problem at all, dev C++ रहो फर्स्ट। अच्छा, difficult software it depends कि what you want to do in there। हम लोगों ने code blocks की जितनी भी, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे कि एक मिनट, let me some computing background will also be done, और एक मिनट इसके बाद की स्लाइड ले लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात बतानी थी कि सम कंप्यूटिंग बैकग्राउंड विल आल्सो बी डन एज द कोर्स मूव अलोंग। कोड ब्लॉक से जवाब मैं अभी दे रहा हूँ।
एक फाइल है कंप्यूटर साइंस ऑन द बॉटम ऑफ .pdf फॉर इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट. लेट मी गेट दिस फाइल फॉर यू. यहाँ पे इट्स प्रोबेबली, एक मिनट, नॉट हियर, एक सेकेंड, पीडीएफ कहाँ गई, ये रही. एक फाइल है ये वाली, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बॉटम अप. ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा. इट्स अ रियली गुड फाइल. इससे ही हम काफी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक्स को कवर करेंगे. तो इफ यू वांट टू रीड दिस फाइल, इतनी बड़ी फाइल नहीं है, शुड टेक यू अबाउट अ वीक और टू. इट्स नॉट नेसेसरी यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी कोर्स है. कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी. सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट, क्योंकि इसके अक्सर कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक कोर्स आपका आगे आएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से, उसमें आप इसकी डिटेल को देखेंगे. अच्छा, इसको तो अभी मैं शेयर कर दूंगा. अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम. इसका मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे कि इधर जो है, एक सेकेंड, ओके. पहला सवाल ये था कि why do we use code blocks in this course even though we are all aware that of the fact that code blocks is a very difficult software. भाई code blocks डिपेंड करता है आप यूज कैसे कर रहे हो. ठीक है, सबसे पहला काम ये है कि सर आई हैव बीन गेटिंग एरर्स टू डाउनलोड कोड ब्लॉक्स ऑल दिस टाइम. भाई कोड ब्लॉक्स अगर डाउनलोड नहीं हो रहा, डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लो. ठीक है, एक और मैं ऑप्शन भी, मैंने पहले भी इसको मैंने ईमेल की थी, codeblocks.org पे अगर जाते हैं, लेट मी गेट दिस स्क्रीन. आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहे हैं? आई होप सो. ठीक है, कोड ब्लॉक्स में यहाँ पे जब मैं जाऊंगा codeblocks.org पे, डाउनलोड्स पे जाके ये मैंने यहाँ पर डाउनलोड दी बाइनरी रिलीज विच मीन एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि आप विंडोज पे रन कर सकते हैं. अच्छा, इसमें जब आप आएंगे तो भाई ये पहला वाला सेटअप डाउनलोड नहीं करना है. कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन इसके साथ एक और स्टेप करना पड़ता है. उसको बचाने के लिए हम ये कहेंगे कि ये जो आपके पास कोड ब्लॉक्स है, सॉरी ये वाला जो कोड ब्लॉक्स है जिसके अंदर MINGW लिखा हुआ है, यू हैव टू डाउनलोड दिस थिंग. ठीक है, यू हैव टू डाउनलोड दिस थिंग. ये जब आप सेटअप करोगे फिर हो जाएगा. अगर इसमें एरर आ रहा है तो इसके अंदर कई सारे मिरर्स बने हुए हैं फॉस हब पे और सोर्स फोर्ज पे. तो इसमें अगर आप क्लिक करते हो फॉस हब पे, यहाँ पे ना कई सारे मिरर्स आपको मिल जाएंगे. मिरर्स यहाँ पे नहीं आ रहे, नहीं मिरर्स नहीं है यहाँ पे. ये तो मुझे डाउनलोड का ऑप्शन भी दे रहा है, मेरे पास इंस्टॉल्ड है, सो आई एम नॉट गोइंग टू री डाउनलोड अगेन. नहीं, इसमें मिरर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा. एक मिनट, लेट मी चेक दैट अगेन. खैर, एक मिनट, सोर्स फोर्स पे शायद सा, आई थिंक सो, नॉट रिमेम्बर, मुझे अभी अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है. इट्स नॉट अ बिग इश्यू एट ऑल. अगर ये डाउनलोड आपके पास नहीं हो रहा और यूनिवर्सिटी में अगर आपका किसी तरह चक्कर लग रहा है तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है. आई मीन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली और इट हैज, ओके, मेरे पास ये आ गया और ये डाउनलोड एग्जीक्यूटिव फाइल है. जस्ट सेटअप इट एंड दैट्स इट. अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो भाई यहाँ पे एक और है आपके पास, सॉरी, डेव सी प्लस प्लस, ये वाला, ये भी सोर्स फोर्ज पे रखा हुआ है. इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर. इसकी कलर स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी थी और आपने नोट किया होगा लेक्चर 6 ऑनवर्ड आई हैव बीन यूजिंग दिस डेव सी प्लस प्लस बिकॉज इट्स एक्चुअली मच मोर प्लेजेंट लुकिंग टू द आईज. चीज वही है, इसके अंदर कंपाइलर बिल्ट इन है. कंपाइलर बिल्ट इन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि आप, यू कैन राइट द सी प्लस प्लस कोड इन अ सिंपल नोट पैड एज वेल. मैं यहाँ पे अगर मैं एक नोट पैड की फाइल यहाँ पे खोलूँ और यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर दूँ इंक्लूड IO स्ट्रीम एंड सो ऑन सो फॉर, बाकी सारा मैं कोड यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा. तो ये मैं कर सकता हूँ इसमें. इसको फिर मैं सेव एज करूंगा एज फाइल डॉट cpp विद द करेक्ट एक्सटेंशन. देन आई नीड टू कॉल दी कंपाइलर कि भाई ये टेक्स्ट, ये सीपीपी फाइल है, इसको कंपाइल करो. ठीक है, ये कर सकते हैं. लेकिन कोड ब्लॉक्स जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या डेव सी प्लस प्लस में, इसके अंदर बिल्ट इन कंपाइलर्स आपके पास हैं. यू जस्ट राइट द कोड एंड यू जस्ट प्रेस द एप्रोप्रिएट की एंड देन इट विल जस्ट कंपाइल इट एंड मेक एन एप्लीकेशन और अ कंसोल मोड एप्लीकेशन. अच्छा सर, माय कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली. भाई डेव सी प्लस प्लस ट्राई कर लो. एक और ऑप्शन मैंने कहा था, वो किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा. एक ये वेबसाइट है, इफ यू कैन गो हियर, cpp.sh. CPP.sh पे जब आप जाएंगे, यू कैन राइट द कोड ओवर हियर एंड सी द आउटपुट जो भी यहाँ पर आ रहा है. फॉर जस्ट ये कोड पहले से लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड या व्हाट इज योर नेम व्हाटएवर. तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो व्हाट इज योर नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई माय नेम इज उमर. तो फिर यहाँ पे कहा हेलो उमर. तो यहाँ पे यू कैन सी द आउटपुट ओवर हियर. यू विल नॉट सी द एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल फाइल बीइंग मेड, क्योंकि ये वेब बेसिक सर्विस है जो कि आपको सी प्लस प्लस कोड को चेक करने के लिए आप कर सकते हैं. इफ यू आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम्स, आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर कोड लिख के चेक कर लें. यहाँ पे एग्जैक्टली वही वाला आउटपुट आएगा जो कि एग्जैक्टली वही आउटपुट आएगा जो कि आप क्या जो है वो कोड ब्लॉक्स या डेव सी प्लस प्लस में आता है. ओके,
सर 4 किया था द क्या लिखा है यार, प्लीज यार थोड़ी अच्छी इधर, यू डिडंट अपलोड द सी प्लस सिंटैक्स चीट शीट। सिंटैक्स चीट शीट नहीं, मुझे नहीं पता है कौन सी शीट से। ओके सर देयर इज वन मिस्टेक इन दिस प्रोग्रामिंग, भाई से हाँ अब ये आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम ऐसा करते हैं कि एक सिंपल सा प्रोग्राम जैसे मैंने लेक्चर में लिख के दिखाया था वो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, और उसमें कुछ बातें हैं वो डिस्कस करनी है, जो कि अभी आपने सवाल पूछा है। जस्ट गो टू डेव सी प्लस प्लस न्यू, और मैंने यहाँ पे सोर्स फाइल यहाँ पे आ गई, और मैंने यहाँ पे लिखा इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और फिर मैंने लिखा इंटीजर मेन वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन होंगे, वो क्लोज भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने सिंपल से लिख दिया सी आउट, यहाँ पे लिखा है हेलो सेक्शन बी, और यहाँ पे सेमीकोलन क्लोज कर दिया। अच्छा अब इसके अंदर अब मैं यहाँ पे जब को एग्जीक्यूट पे जाऊंगा तो वो कहेगा कंपाइल एंड रन का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, आई जस्ट क्लिक दिस थिंग, और कंपाइल एंड रन पे काफी सारी फाइल्स बनी हुई हैं, आई डोंट रिमेंबर, यहाँ पे जस्ट अ नेम, आज क्या है, लाइव लेक्चर 1 डॉट cpp एक्सटेंशन देना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज देयर लॉट्स ऑफ मेनी अदर एक्सटेंशन भी हैं, cpp हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है सेव कर लिया, और ये जब कंपाइल कर लेगा तो एक मिनट, लेट मी गेट दिस। एक सेकेंड, यहाँ पे व्हाई एम आई नॉट गेटिंग दिस थिंग, मेरे पास ये आ तो रहा है लेकिन ये किसी और विंडो में आ रहा है। एक्चुअली देयर आर मल्टीपल मॉनिटर्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई सिंपली कैन नॉट गेट दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एक सेकेंड, इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट, एक मिनट यहाँ पे दोबारा चला के देख लेते हैं। ओके हियर वी हैव इट, वी आर, वो सॉरी वो पता नहीं कौन से मॉनिटर पे पहुंच गई थी चीज। ठीक है अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हेलो सेक्शन बी, ये दैट्स आउटपुट, बाकी जो लाइंस हैं जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, इसके नीचे क्या है। यहाँ पे ओके वेयर वर वी, यहाँ पे ओके देखें, यहाँ पे अगर है कि एंडल नहीं लगाया, हाँ एंडल नहीं लगाया, वो भी लगा लेते हैं। अच्छा फर्स्ट लाइन इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देखें इफ यू डू नॉट हैव द बिल्ट इन कंपाइलर, उसको नहीं पता आईओ स्ट्रीम कहाँ पर है। आईओ स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल, हेडर फाइल का मतलब ऐसी फाइल जो कोड के शुरू में आ रही है, और इसके अंदर हमारे पास सी आउट सी इन की डेफिनेशंस हैं। सी आउट और सी इन आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स, जो कि यू कैन थिंक ऑफ इट सी आउट और सी इन एज अ मशीन, या एक ऑब्जेक्ट समझ लें, समथिंग विच हैंडल्स दिस थिंग, जो भी यहाँ पे है आफ्टर दिस आउटपुट ऑपरेटर, जो भी यहाँ पर है वो पूरा का पूरा कंसोल आउटपुट पे दे रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा कंसोल आउटपुट पे यहाँ पे वो दे रहा है। ठीक है, और जस्ट लाइक दैट। ठीक है, कंसोल आउटपुट पे वो यहाँ पे दे रहा है, दिस इज द कंसोल एप्लीकेशन। और अगर हम यहाँ पे देखें इस डेव सी प्लस प्लस ने क्या किया है कि इधर जो है, इफ आई कैन गो टू द फोल्डर, फोल्डर था, एक मिनट, दैट वाज द नेम स्प्रिंग। इस फोल्डर का अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक हमने फाइल बनाई थी लाइव लेक्चर सीपीपी, उसने लाइव लेक्चर डॉट एक्सी फाइल भी यहाँ पे बना दी। दिस इज एन एप्लीकेशन जो अभी हमने बनाई है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो ये वाली एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाती है, जो एक्सी फाइल की एप्लीकेशन है। अच्छा अब ये जो फाइल इसने बनाई है सीपीपी से, एक्सी फाइल कैसे बनी, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, वो आपके सवालों का जवाब जो है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाई इट हैपेंड। पहले लेट मी गो बैक टू माय प्रेजेंटेशन, इसको अगर हम रन कर लेते हैं,
और सॉरी डिस्प्ले प्रेजेंटर, ओके। हाउ टू राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, हमने एक आईडी यूज करके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करके एक सिंपल सी सीपीपी फाइल लिखी, और इफ यू वांट टू यूज दिस थिंग यू कैन यूज दिस थिंग, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक्सी फाइल ही बनाएगा। पहला काम उसने ये किया कि हम लोगों ने यहाँ पे एडिटर था, एडिटर जो कि ये वाला एडिटर था, दिस इज एक्चुअली एसेंशियली नोटपैड। इसके अंदर एक फायदा ये है कि इसमें ना कलर कोडिंग हमारे पास हो जाती है, और कलर कोडिंग के साथ साथ हमारे पास जो है ये ब्रैकेट्स के साथ हमारे पास जो है ये हम इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे बहुत लंबा कोड होगा जस्ट टू मेक इट मोर रीडेबल के इस ब्लॉक में क्या हो रहा है या उस ब्लॉक में क्या हो रहा है, तो हम कोड को कोलैप्स कर सकते हैं। एसेंशियली बिहाइंड द सीन जस्ट नोटपैड ऑन स्टेरॉइड्स, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एडिटर से हमने क्या किया, फाइल बनाकर उसको डॉट सीपीपी करके अपने किसी फोल्डर में यानी कि हार्ड डिस्क में सेव कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि हमने जब इसको एग्जीक्यूट या कंपाइल किया था, सॉरी एग्जीक्यूट नहीं कंपाइल किया था, तो एक सॉफ्टवेयर होता है समथिंग नोन एज अ प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर ये करेगा कि उस कोड को पार्स करेगा। एक्चुअली यहाँ पर इस कोड को जरा दोबारा रिविजिट कर लेते हैं। इस कोड में हमारे पास बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस को कंपाइलर नहीं देखता, ठीक है। दूसरा ये कि हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह के इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं, बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड वंस एंड जीरोस। कंप्यूटर जो है वो वंस एंड जीरोस में काम करता है, और इट सिंपली डज नॉट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये इंक्स का वर्ड क्या है। तो प्री प्रोसेसर ये करेगा कि यहाँ पर जो हमारे पास शुरू में जो हमने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिया हुआ है, इसको तो यहाँ पे इंक्लूड करेगा, यानी कि आईओ स्ट्रीम के अंदर जो कुछ भी कोड मौजूद है वो इस फाइल के शुरू में अपेंड कर देगा, ऐड कर देगा, आई मीन सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग। दूसरा ये कि अगर हमने यहाँ पे इफ वी हैव डिफाइंड समथिंग, डिफाइंड सम डायरेक्टिव, ये बाद में पढ़ेंगे डिफाइन का मतलब क्या है, इसमें हम कोई शॉर्टकट्स या मैक्रोस डिफाइन कर लेते हैं, एंड वी आर सेइंग कि देखो जहाँ पे भी अगर मैंने कहा कि मैक्रो 1, ठीक है, और मैंने कहीं भी कहा कि देखो इस तरह की कहीं पे चीज अगर कोड में मिले तो उसको किसी चीज से रिप्लेस कर देना, ये मैं बाद में समझाऊंगा हाउ इट वर्क्स। तो वो ये करेगा जहां जहां उसको इस तरह की कोई चीज मिलेगी उसको वो जो भी आपने इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी उससे ये रिप्लेस कर देगा। तो इसको तो फिलहाल छोड़ देते हैं। दूसरा ये कि व्हेनेवर हमने यहाँ पे कोई अपना कमेंट दे दिया, कमेंट 1 अपनी आसानी के लिए, और जस्ट मेक अ कमेंट 2, और एक मल्टी लाइन कमेंट दे दिया कि दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, और गोइंग टू 2 लाइन वट एवर यू जस्ट वॉन्ट टू राइट एनीथिंग जो आप लिखते हो यहाँ पे। और मल्टी लाइन कमेंट जब हमने यहाँ पे दिया तो ये सारा कंपाइलर इसके मतलब कंपाइलर जो प्री प्रोसेसर ये करेगा, आई मीन जस्ट रिमूव दिस थिंग, ये आपकी सीपीपी फाइल में तो रहेगा बट कंपाइलर सिंपली डजंट केयर कि यहाँ पे क्या चीज है। सिमिलरली यहाँ पे जो व्हाइट स्पेसेस हैं कंपाइलर इनको भी नहीं पढ़ता, ठीक है। कंपाइलर सिर्फ अब ये करेगा कि ये जो हमारे पास क्या कहते हैं जो सेमी कोलन्स हैं यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट सेंड हो रहे हैं इनको ये देखेगा और इनके मुताबिक ये काम करेगा। इस लाइन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देन कमिंग टू वेयर इज दैट, कंपाइलर जो है वो इसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा इस पूरे को, यानी कि इट विल जस्ट ट्रांसलेट द होल सीपीपी फाइल। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। कंपाइलर डिजाइन इतना सिंपल नहीं है। ये इस सीपीपी फाइल को एक ऐसी फाइल में ट्रांसलेट करेगा जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड, और एक एग्जीक्यूटेबल या एक ऐसी फाइल जो कि मशीन रीड कर सके, ठीक है। सॉरी इसमें कुछ चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट, ये ऐसे क्लियर होंगी। अच्छा, देन उसमें ये होता है कि हमारे पास इस कोड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सी आउट, और यहाँ पे मैंने कहा सॉरी आउटपुट ऑपरेटर, और मैंने यहाँ पे साइन ऑफ 3 रेडियंस में यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये साइन ऑफ 3 रेडियंस जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि यहाँ पे आईओ स्ट्रीम में डिफाइंड नहीं है। मुमकिन है साइन फंक्शन किसी और प्रोग्रामर ने बनाया हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट साइन फंक्शन इज इन दिस फाइल, या इंक्लूड सी मैथ में हो सकता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक एक फाइल है उसके अंदर हो सकता है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने कोई अपना फंक्शन बनाया हुआ है, या आपके किसी प्रोग्रामर फ्रेंड ने कोई फंक्शन बनाया हुआ है और आपने वो फंक्शन अपने कोड में कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर आपके पास होंगे गैप्स कि भाई इसको तो इसकी डेफिनेशन नहीं पता। तो वो ये करेगा कि प्रोग्रामर्स ने जो दूसरे आपके दोस्तों ने अपनी सीपीपी फाइल्स बनाई होंगी उनके ऑब्जेक्ट कोड्स को
वो लिंक करेगा कि भाई ये वाला फंक्शन की डेफिनेशन इस फाइल में है, ये वाले फंक्शन की डेफिनेशन इस फाइल में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह ये जो गैप्स हैं इनको फिल करता है, और फिर इवेंचुअली यू हैव एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखी थी। ये वाली एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी जिस फोल्डर में आपने सीपीपी फाइल होती है वहीं पे एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको फाइल को रन करना है, आप उस फाइल को डबल क्लिक करोगे या कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर रन दिस फाइल जिसके लिखे फाइल नेम डॉट एक्जी लिख के रन करोगे, वो डिस्क से लोड करेगा, मेमोरी में आ जाएगा, और मेमोरी में आने के बाद सीपीयू जो है टेक्स इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट इट, पॉसिबली स्टोरिंग न्यू डेटा वैल्यू एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। एसेंशियली होता ये है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और द मेन सीपीयू, जैसे आपके पास जैसे हम कहते हैं ना कोर i5 या कोर i7, ये सीपीयूज हैं, ये मेमोरी से दो चीजें रीड करते हैं, एक डेटा, दूसरी इंस्ट्रक्शंस। वंस अगेन इंस्ट्रक्शन भी वंस एंड जीरोस की फॉर्म में होती हैं, मेमोरी भी वंस एंड जीरोस, मेमोरी में जो कुछ डेटा लिखा हुआ है भी वंस एंड जीरोस की फॉर्म में होता है। इंस्ट्रक्शंस कहती हैं यार यूजर से ये डेटा ले लो, फिर उसके बाद ये काम करो और ये काम करो। अगर मेमोरी में हमने कोई डेटा स्टोर किया हुआ होता है वो वहां से भी, अगर हम कहते हैं कि जस्ट फेच दैट डेटा एंड डू समथिंग अबाउट इट, तो वहां से भी लेता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी में जो कुछ लिखा होता है वंस एंड जीरोस की फॉर्म में होता है। सीपीयू ये इंस्ट्रक्शंस से, और इंस्ट्रक्शन भी एसेंशियली मेमोरी में होती हैं, ये जो है मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है अपने रजिस्टर से फेच करके या लेकर आके इनको एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि भाई मेमोरी के इस ब्लॉक पे जाओ, यहाँ से ये डेटा निकाल के लाओ और उसके साथ ये काम करो। ये सारा का सारा हमारा बिहाइंड द सीन एक वंस एंड जीरोस की लैंग्वेज में होता है। इफ यू वांट टू लर्न दैट वंस एंड जीरोस लैंग्वेज, वो फिर आप एक असेंबली लैंग्वेज है, वो आप आगे किसी कोर्स में उसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिनट, देयर आर, हाँ सही है, एब्सोल्युटली यूज हेडर फाइल सर, कैन वी यूज। अच्छा, पहला सवाल, सबसे पहला सवाल ये था अदील का, सर साइन में एरर आ रहा है हमेशा, मोस्ट लाइकली यू डिड नॉट इंक्लूड, मतलब आपके कंपाइलर, सॉरी आपके आईडी में कंपाइलर नहीं होगा, ठीक है, और मेक श्योर कि who is that solid sir English sir please, sorry about it, अच्छा भाई मैंने देखा नहीं okay, um whenever if you did not include, if you have a IDE which does not have a built-in compiler, you will see an error which says that this include, I mean उसको it would not know कि IOStream कहाँ पर है, where is that IOStream file। okay, next NL नहीं लिखा, NL नहीं लिखा, नहीं लिख सकते हैं, मना नहीं है, if you want to, if you want कि इसको तो मैं कम वो कर रहा हूँ, सॉरी, I want to remark this thing, if you want to, I want to also remark this thing, if you want के आपका cursor, you if you want to move your cursor to the next line after running this thing, तो फिर आप यहाँ you just place endl over there, or what you can do is you can place \n, which means exactly the same thing with new line character। endl does two things, ये मैंने अपने, I have explained the detail of endl in one of those recorded lectures। Okay. Sir, can we use any other header file? Yes, absolutely. IOStreams, there are many header files you will be using because you will be using some functions which are designed in some, which are defined in some other header files. So if you are, let's say you are using some mathematical function, you need to include the CMath. If you are manipulating these output of some numbers, so you need to use the IO manipulator header file। those header files are explained in some future lectures। Okay sir, see out green color में है, type नहीं हो रहा, second lecture too, I have no idea। there are other header files depending too on the program related to mathematics, absolutely। conio.h, ये this file is console input output, this is traditionally used in C programming, you can use in C++ as well if you want to, but IOStream has the definition of cout and cin। if you are using standard library or printf or scanf functions, you need to include conio.h। sir please try to use Urdu in recorded lecture as well। भाई Urdu as actually यहाँ पे भी Urdu use करना allowed नहीं है। Urdu is not allowed to be used in this live lecture as well as in recorded lectures, because as per policy of the higher management, all the lectures are to be recorded in English। I have made sure that my English is, I mean, it's as simple as possible without using any complicated words। if you can follow the what I'm writing on the key on the screen, you should be okay कि if you मतलब programming learn करना इतना मसला नहीं होगा। Okay, next comment क्या आया है, when and where do we include
return 0. Okay, return 0, if I write return 0, actually इसने खुद ही लिख लिया होगा यहाँ पे, but if I write return 0 over here, that means that the program has run successfully and it has returned 0. Return 0 actually corresponds to, this 0 is an integer, this 0 corresponds to this int. Main is the name of a main function, the actual function in which is actually doing the whole action. It is not expecting any value while we are calling this function, because whenever we are calling the exe file, or whenever we are executing the exe file, we are behind the scene actually calling this main function. Actually, this simplistic definition actually, but this main function is actually doing the whole action over here. And if it has run successfully, it is going to return 0, because we have defined it such that this main function is going to return an integer value, and there are other error codes as well. I mean, return 0 means that the program has run successfully. अच्छा, मोहम्मद रऊफ अरशद कह रहे हैं सर बिफोर यूजिंग कॉलिंग फंक्शन शुड नॉट बी देयर एनी वेरिएबल्स टू डिक्लेयर. देखें, इफ यू आर यूजिंग वेरिएबल्स, ऑब्वियसली you need to declare them first. I haven't used any variable here. I mean, obviously, if I can just integer a comma b, and I'm taking an input from the user. First, I need to print out something such as enter value of a and b, and I want that my cursor to be placed on the next line. So I just place \n, and that's it. And I write cin and input character. Cin means that whatever is coming from the input goes here. So I write a, and then I write b, and I just write cout. Since now I'm using these variables, I need to declare them first in this line. So ये रऊफ अरशद के सवाल का ये जवाब है. Okay, cout. I just going to write cout output character. The values of a and b are, and this is just a string. You just write anything over here. This thing is not going to display the values of a and b unless you do this, then a simple space, maybe 2 spaces, and then b. I mean, this thing is going to display the value of a and b over here. So just write b and L for new line and output buffer flush, and that's it. So just run this thing and see what we get. Okay, enter value of a and b. That's right, 12. Enter 15, and the values of a and b are 12 and 15 over here. Since I've used the variables, I need to declare them first. I cannot use them without declaring them first. I mean, declaration actually means that you're telling the computer, look, I'm going to use some kind of a memory space, and that memory space, I need to allocate some memory space for my future work, and I'm declaring that memory space so that that memory space is going to store an integer. An integer is obviously of 4 bytes, and those 4 bytes are going to be allocated for variable a and variable b. A and b are essentially just symbols, and those symbols are just for representing those memory locations which are of 4 bytes. Okay, and then it actually defines that what operations and what values can be performed on those memory locations. Okay, what is global declaration in C++? This global declaration, bhai, ye cheez aayegi, this is going to be coming up in lecture number 16 actually, where we are discussing the scope. If you are declaring some variables over here, they are visible everywhere. If you are declaring those variables, short answer, if you are declaring variables between these here, if I'm declaring integer a over here, this integer a is only visible in this code block. So if I'm declaring integer over here, integer a, even though it's not a good practice, but if I'm declaring over here, this thing is visible across the whole program. I mean, these integers are actually different even though they have the same name, but don't do that. Okay, explain overloadability and set precision directive. Overloadability is a object-oriented concept. If you have a function and it depends on what context you are using it and you want to behave it a little bit differently, so
then you write another definition of that, and based on what arguments you're passing to that function depends. Let's say I have declared a function, lekin bhai ye this question, let's make a function integer function 1 and I say integer a. So this function is a I mean just function name. Actually I'm going to write the definition later. Integer function 1, I'm going to write integer a comma integer b. Even though we have the same function names, but they will be performing different tasks depending on what code I'm writing over here, depending on what arguments I'm passing. If I'm passing 2 arguments to this function, this thing is going to perform this function. If I'm passing 1 argument to this function, this thing is going to perform this function. But its overloadability is a object oriented concept. We are going to discuss object oriented features after midterm. Okay, difference between single line comment and multi line comment. Bhai single line comment मैंने बता दिया. You just write double forward slash over here. If you write forward slash with a star sign, that's a multiple line comment over here. Okay, sir, what about labs? How will be conducted? I mean, they will be performed. Sarim Shahab. Bhai, they will be decided by the university after the. I mean, if after like 10 weeks actually. Difference between integer and constant integer. Okay, good question. Bhai, integer. You may explain kiya hai kisi lecture. I have explained it. If I write integer c equals to 10, I can override the value c equals to 2052. No problem at all. I mean, just over now the value of c is 52. If I write constant integer d equals to 10, that means now I cannot do this. I cannot do this. It's going to put an error over here by a constant key value. How can you change it? Okay. Sir, we are going to, yes, integer main, yes, absolutely. Integer before main, yes, because it's the standard way of defining the main function. It's a special kind of function. It has to return some numeric value for the computer to say that bhai ye kaam sahi ho gaya. What about uppercase main? Nahi use karna. No. Okay, C++ is case sensitive. Sir, main function can contain some value in bracket if contains any value such as main. Good question. Nahi. You cannot do that. Actually, you can do that, but you need to define that this main function is actually accepting some kind of an argument. Yeah, advanced question. I mean, pretty much everyone else in the class is not going to understand it. Okay, sirs, please describe preprocessor directed. I think I've described it. That means that I'm saying to the compiler, look, this IO stream contains many definitions of the functions we are going to use later on in the program. Include whatever is in this IO stream before compiling this program. It's just like saying that bhai aap jaise whenever, I mean, you took admission in electrical engineering, it's understood that you already know what you were taught in your college and school. I mean, that's a prerequisite knowledge to process whatever knowledge you are going to discover in this program. Similarly, IOStream, I mean, I'm including some preprocessor directive. It says, look, IOStream contains many definitions. I'm going to include those. Just include these, whatever code is in IOStream before, I mean, at the head or before this file. Okay, so what is Conaio? नहीं, do not use that भाई. ये C language की वो है header files, standard files है. Midterm अभी नहीं पता. Sir, I joined now because of lack of internet. What is, yeah, this program, this whole recording is going to be available in your ये सारी जो है आपकी available होगी उसमें. All of them is going to be available in your, किसमें आएगा? Drive folder में आ जाएगा. Is going to be shared with you. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद I'm on motorway, that's why. अच्छा भाई, ठीक है. अच्छा, I've installed the same version of code block compiler. What to do? No, that's great. Yeah, motorway में क्या कर. अच्छा खैर, dev C++ पे आ जाओ अगर code blocks मसला कर रहा है. ठीक है. Actually that ends our, we just have a minute to go before going anywhere. Just a second, and let me take the attendance over here. और भी कुछ सवाल हैं तो हम उसको वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस एज हम अगले कोई और अगर फिर वांट के भाई एक्स्ट्रा कोई क्लास अगर अरेंज हो जाए वी आर गोइंग टू अरेंज दैट एज वेल. अगर आप चाह रहे हो इस तरह की तो हम इसको फिर क्या कहते हैं कोई अगर इस तरह कर रहे हैं तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं. आपने CR से कह के आप उसको कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज
end of live lecture. Just every student must hang up or leave meeting now, and that's it. See you inshallah on next Tuesday. Yes, attendance हो गई है भाई. That's it. Allah Hafiz. Inshallah, see you on next Tuesday. अच्छा यार, मुझे किसी ने रिपोर्ट किया था पहली क्लास में कि इसने सॉन्ग्स वगैरह लगाए थे, तो भाई मैंने तो